Hello students, how are you all? I am hoping that you all are safe and fine. Today we are here with our next chapter, that is chapter 2, acids, bases and salt. This is our third chapter of this syllabus and second chapter according to your NCERT book. Yes, earlier we have discussed two chapters, chapter 5, periodic classification of elements, and chapter 1, chemical reactions and equations. These were small chapters. But this chapter is little bit big than these two chapters, and next two chapters, metals and non-metals and carbon and its compounds, these are very long chapters. So yes, in this chapter we are going to do many of the reaction. In the previous chapter I told you only 8 to 10 reactions we have to learn. In this reaction basically only 8 to 10 reactions only you have to learn, but you have to do the concepts of many reactions. आपको इस चैप्टर में हो सकता है या तो 8 से 10 रिएक्शन ही करनी है, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ये चीज इससे रिएक्ट करके हमेशा यही बनाएगी, तो उस बेसिस पे कितनी भी रिएक्शन बन सकती है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते. ठीक है, तो दिस चैप्टर इज अबाउट द रिएक्शंस. बट क्या है कि अगर आप साथ के साथ करोगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. तो इसलिए इसको ज्यादा मुश्किल करके क्रिएट नहीं करना है, इसको इजी करके समझने की कोशिश करनी है. And at the end of this chapter you will be able to write all the reaction by yourself only. ठीक है, ध्यान से समझना, कोई ऐसे डिफिकल्ट नहीं है. ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है. Why it is so interesting? First reason, it is very interesting because it is a concepts of acid, bases and salt. Second reason is that you have discussed these kind of concepts, acid, bases and salt, in your previous classes also. So you know the base of these acid, bases and salt. तो यस, इट विल बी अ फन. आपको बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में. ओके, सो यस, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस चैप्टर वी शुड नो अबाउट सम ऑफ द थिंग्स. इन आवर डेली रूटीन लाइफ वी आर ईटिंग अ नंबर ऑफ थिंग्स. हम बहुत अलग अलग तरह की चीजें खाते हैं. वो डू दे हैव द सेम टेस्ट? नो. यस, विच काइंड ऑफ टेस्ट दे आर हैविंग? तो यस, हम यहाँ पे कुछ एक डिस्कस करते हैं कि किस तरह का टेस्ट किस किस चीज में होता है, क्योंकि सारी की सारी चीजें सेम टेस्ट तो नहीं करती है. ठीक है, सबसे फर्स्ट हमने यहाँ पे मैंने जो लिखा है दैट इज लेमन जूस. यस, ऑल वी नो दैट इट इज वेरी सोर इन टेस्ट. तो यस, इट टेस्ट इज सोर, खट्टा. नेक्स्ट इज ऑरेंज जूस. ऑरेंज जूस इज लाइक खट्टा मीठा, तो इट इज सोर एंड स्वीट, खट्टा एंड मीठा. नेक्स्ट इज कर्ड. कर्ड इज लिटिल बिट सोर इन टेस्ट. Next is sugar. Sugar is obviously name suggests it is sweet in taste. It is sweet in taste. Next is common salt. Salt means it is salty in taste. Next is आंवला. आंवला नहीं खा सकते है ना, it is very bitter, बहुत ही कड़वा होता है. Yes. Next is baking soda. Baking soda again is very bitter in taste. And last one is the vinegar. Vinegar is sour in taste. So here we have discussed about some of the taste like sour, खट्टा, स्वीट, मीठा, सोल्टी. नेक्स्ट इज बिटर, कड़वा. हमने ये अलग अलग टेस्ट देखे हैं. टेस्ट हम ऑब्जर्व करते हैं अपने डेली रूटीन लाइफ में. सो यस, एक्चुअली दिस इज द बेसिस ऑफ दिस चैप्टर, एसिड, बेसिस एंड सोल्ट. यहाँ से हमारा बेस बनता है. ओके, सबसे पहले दो सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट आर कॉल्ड एसिड्स. तो यहां से हमारे पास एसिड्स का कंसेप्ट आता है. एसिड, फर्स्ट सब्सटेंस इज एसिड. नेक्स्ट, दो सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट आर बेसिस और बेस. तो यस, जो सब्सटेंसेस बिटर टेस्ट करते हैं उनको हम बेस बोलते हैं, जो हमारा सेकंड कंसेप्ट है. थर्ड हमारे पास आता है जो ना ही एसिड है ना ही बेस है, मींस न्यूट्रल सब्सटेंसेस. न्यूट्रल सब्सटेंसेस. So yes, neutral substances comprises these sweet kind of taste. Sweet मतलब न्यूट्रल होते हैं, and salty. तो ये salt is basically a type of the neutral substance. So ये दोनों के दोनों न्यूट्रल सब्सटेंसेस में आते हैं. तो yes, most of the salt are neutral in nature, not all, but most of the salts are neutral in nature. And sweets like sugar, glucose, ये सारे के सारे neutral substances होते हैं.
So from this concept we come to know कि we are having acid, bases and neutral substances, and salts are the part of the neutral substances. So this is our chapter, that is acid, bases and salts. So in this chapter we are going to discuss in detail about the concepts of acids, bases and salts. So yes students, now we are going to discuss acid, bases and salts in detail. So first one is acid. We are going to discuss about the acid in detail. Acid come from a Latin word acere, which means sour. So yes, it come from a Latin word, that is acere. Next is Robert Boyle was the first scientist who had given the term acids or bases on the basis of their simple properties. उन्होंने acids और bases को discuss किया, थोड़ा सा उनके simple properties, sour in taste, bitter in taste, soapy to touch, not soapy to touch, उस तरह के simple properties के basis पे उन्होंने term दिया Robert Boyle. Okay? लेकिन जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो डिटेल में केमिकल कैसे वो एसिड बिहेव करते हैं, कैसे वो बेसिस बिहेव करते हैं, तो वो जो कंसेप्ट है वो देखा था आर्हीनियस ने. तो यस, आर्हीनियस वाज द साइंटिस्ट हु डिस्कस्ड और हु हैड ऑब्जर्व्ड द डिफरेंसेस अमंग एसिड्स एंड बेसिस इन डिटेल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर. ठीक है, तो यस, इसके बेसिस पे अब हम एसिड्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. एसिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर सोर इन टेस्ट. हम ये बोल सकते हैं एक डेफिनेशन के अंदर कि एसिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर सोर इन टेस्ट. पूरी लाइन लिखनी है, यहाँ तो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ. ठीक है, ये हो गया. या फिर हम लोग ये कर सकते हैं, एसिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन आयन, जिसको हम लिखते हैं H+ आयन की फॉर्म में, H+ आयन इन वाटर और इन सॉल्यूशन. एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो H+ आयन को देते हैं सॉल्यूशन के अंदर या वाटर के अंदर. इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? इसके एग्जांपल HCl, H2SO4, देन HNO3, विनेगर. तो ये सारे के सारे एसिटिक एसिड, ये सारे के सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं एसिड के. तो बेसिकली एसिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर सोर इन टेस्ट, और वी कैन से एसिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच गिव hydrogen ion after dissociation when we are putting it into the water or any kind of solution. So yes, this is about the acid. अब क्या होता है कि we can classify acid is in number of terms. हम acids को कई तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं. तो हमारे पास काफी सारे पैरामीटर्स हैं एसिड्स को क्लासीफाई करने के. सबसे पहले हम उनको क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन देयर सोर्सेज, कि हमें वो कहां से मिला है. तो ये सोर्सेज के बेसिस पे हम लोग एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं टू टर्म्स में, दैट इज ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड. Organic acid and inorganic acid on the basis of their sources. Now हमारे पास next क्या है? Based on their basicity. Basicity क्या है? अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. तो basicity के बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई करते हैं तीन चीजों में, that is monobasic, dibasic and tribasic. Okay, now next one is based on their concentration. कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम लोग एसिड को क्लासिफाई करते हैं दो तरह से. एक तो हम करते हैं कंसंट्रेटेड एसिड, और सेकेंड हमारे पास होता है डाइल्यूट एसिड. ओके, लास्ट वन इज बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ्स.
स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम लोग एसिड को क्लासिफाई करते हैं टू टर्म्स में, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो बेसिकली बेटा हमने क्लासिफाई किया है एसिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ 4 पैरामीटर्स। हमने 4 तरह से एसिड्स को क्लासिफाई किया है। उनके सोर्सेज कैसे हैं, उनकी बेसिसिटी कैसी है, कंसंट्रेशन कैसी है और स्ट्रेंथ कैसी है। ठीक है, स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं आयनाइजेशन भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको आयनाइजेशन भी बोल सकते हैं कि कितना वो आयोनाइज हुआ है। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर आयोनाइजेशन। तो यस, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, मोनोबेसिक, डायबेसिक, ट्राइबेसिक, कंसंट्रेटेड एसिड्स, डाइल्यूट एसिड्स, strong acids and weak acid. So now we are going to discuss all kinds of acids in detail one by one. So our first classification was based on their sources. We classify the acids on the basis of their sources into 2 categories. First one is organic acid and second one is inorganic acid. So organic acids are, what are organic acids? Organic acids are those acids which we are getting from plants and animals. Plants and animals are what? Living things. So yes, the acid which we are getting from the living things are known as organic acid. So yes, here I have written many of the examples which we are eating, many things which we are eating in our daily routine life, लेकिन हमें ये नहीं पता होता उसमें किस तरह का एसिड है। First one is citric acid. तो ये citric acid we are getting from the citrus fruit. Citrus मतलब खट्टे, जैसे लेमन हुआ, ऑरेंज हुआ, तो ये सारों में सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन बेसिकली मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, सो इट कैन बी मिल्क एंड कर्ड. नेक्स्ट इज एस्कॉर्बिक एसिड. एस्कॉर्बिक एसिड अगेन इट्स प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट्स एंड आंवला, इनमें ये एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है. टार्ट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन टेमेरिंड. टेमेरिंड इज इमली, इमली में प्रेजेंट होता है इन ग्रेप्स. बेटा अगर ये आप याद कर लेते हो तो इट विल बी बेनिफिशियल. ये किसी ना किसी चैप्टर में कहीं ना कहीं हम यूज करेंगे, तो ठीक है, अगर याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है. एसिडिक एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर एंड अमीनो एसिड इज प्रेजेंट इन प्रोटीन्स. तो यस, प्रोटीन्स, प्रोटीन को सुन के याद आता है कि हमारी बॉडी में तो बहुत सारा प्रोटीन है. प्रोटीन इज एक्चुअली दैट कंपोनेंट ऑफ द फूड विच इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द एनिमल, जो ग्रोथ में हेल्प करता है. तो प्रोटीन तो इट्स अ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं जिसमें, तो यानी कि हमारी बॉडी में एसिड्स है. प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, फैट, फैटी एसिड, डीएनए, डीएनए सुने, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड. तो यस, अगेन इट इज अ एसिड और इट इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, तो ये बहुत सारे एसिड हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट है. आपने कभी भी सुना होगा कि यस वी आर यूजिंग the vinegar for as a preservative in case of the pickles, in case of any of the मतलब food, jam, sauce, इन सब में कुछ ना कुछ एसिड मिक्स होता है. Why it is so? प्रिजर्वेटिव की तरह हम एसिड्स को क्यों यूज करते हैं? बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, यस, तो वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर अनेबल टू सर्वाइव इन द एसिडिक एनवायरमेंट. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ही नहीं कर सकते, सर्वाइव ही नहीं कर सकते एसिडिक मीडियम में. इसलिए हम जो भी मार्केट से हमें चीजें मिलती हैं उनमें हम प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं, कुछ कुछ एसिड यूज करते हैं, लाइक विनेगर वी आर यूजिंग, और बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं ताकि अलग. विनेगर हम बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं जैसे कि सॉस, जैम और कोई भी फूड आइटम है. इसके अलावा हमने कई बार आप देखते हो कि पीकल को बहुत ज्यादा ऑयलिंग करके रख दिया जाता है, तो डेंसिडिटी ना होने के लिए हम बहुत ज्यादा नमक डाल के रख देते हैं. क्यों? क्योंकि वो भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है. ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी चीजों को प्रिजर्व कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट थिंग इज इनऑर्गेनिक एसिड्स. इनऑर्गेनिक एसिड्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज मिनरल एसिड्स और लेबोरेटरी एसिड्स. ठीक है, तो यस, इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड है क्या? मिनरल एसिड्स आर दोज एसिड्स which are prepared from the mineral of the earth. ये वाले वो एसिड्स होते हैं which are prepared from the mineral of the earth, जो हमें अर्थ के ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर जो मिनरल मिलते हैं उससे हम प्रिपेयर करते हैं. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मिनरल एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड. क्योंकि इनऑर्गेनिक मटेरियल है, लिविंग नहीं है, तो इसलिए हम इसको इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं. As we are preparing these acids in our lab, so that's why it is known as laboratory acid.
क्योंकि हम इसको लैब में तैयार कर रहे हैं. These example of these acids can be sulfuric acid H2SO4, hydrochloric acid HCl, nitric acid HNO3 and carbonic acid H2CO3. तो ये सारे के सारे एसिड्स हम लेबोरेटरी में तैयार करते हैं. तो ये जो एसिड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स आर जनरली वेरी स्ट्रॉन्ग और हैव अ वेरी हाई एसिडिक पावर देन ऑर्गेनिक एसिड. ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं. ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं. वीक एसिड होते हैं तभी हम उन्हें खा पा रहे हैं, हमारे अंदर वो है. अगर स्ट्रॉन्ग होते तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाते, हम तो मर जाते. तो यस, ये वीक होते हैं, माइल्ड होते हैं. लेकिन इनऑर्गेनिक हमने लैब में इसीलिए तैयार किया है क्योंकि हमें ये वीक मिल रहे थे, हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए थे अपने कुछ कुछ एक्टिविटी के लिए, इसीलिए हमने इनको लैब में तैयार किया है. अमंग दीज लेबोरेटरी एसिड्स द कार्बोनिक एसिड इज वीक. ये तो वीक है लेकिन बाकी तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग है. एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज नोन एज द किंग ऑफ द केमिकल्स क्योंकि ये सबसे ज्यादा एसिडिक होता है. ठीक है. तो ये सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, दीज आर वेरी कोरोसिव इन नेचर. कोरोसिव मतलब ये कोरोजन में हेल्प करते हैं, रस्टिंग में, मेटल्स को खराब करने में हेल्प करते हैं. ठीक है. हेल्प क्या करते हैं? मेटल को खराब कर देते हैं. ठीक है. सो यस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं कि अगर इनका एक ड्रॉप भी गिर गया तो हमारी बॉडी बर्न हो सकती है, डैमेज हो सकती है, खराब हो सकती है. इवन अ होल कैन क्रिएट इन आवर हैंड. अगर मैंने ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड का एक ड्रॉप पोर किया, वो नीचे से निकल आएगा. तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. ठीक है. तो बेसिकली ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कोरोसिव नेचर के होते हैं. ओके. नाउ आवर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन देयर बेसिसिटी. So yes, before going to do with their classification, first we should know about the meaning of basicity. Basicity क्या होता है? Basicity is basically number of replaceable hydrogen atom या hydrogen ion present in one molecule of an acid. क्या होता है बेसिसिटी? कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन एटम एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड में प्रेजेंट है. एक ही मॉलिक्यूल ऑफ एसिड में. ठीक है. एक ही मॉलिक्यूल की बात चल रही है. एक मॉलिक्यूल में जितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट हैं उसको हम बेसिसिटी बोलते हैं एसिड की. ये टर्म अपोजिट है. एसिड की बेसिसिटी होती है, बेसिस की एसिडिटी होती है. इसमें कंफ्यूज मत होना. ठीक है. तो ये बेसिसिटी हमेशा एसिड की होगी कि उसके पास कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है. जैसे अब इसके पास एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है. ठीक है. ये हम कैसे पता लगाते हैं कि कैसे ये टूटता है? एक्चुअली ये कंसेप्ट हम डिटेल में करेंगे इसी चैप्टर में, एक दो टॉपिक के बाद, तब आपको पता लगेगा कि कैसे ये डिसोसिएट होता है. अभी के लिए मैं आपको बता रही हूँ. तो यस, जब ये डिसोसिएट होता है तो यहाँ पे उसने एक हाइड्रोजन एटम दिया है, हाइड्रोजन आयन दिया है, सॉरी. तो एक हाइड्रोजन आयन दिया उसने सॉल्यूशन के अंदर. तो दैट मीन्स इट इज मोनोबेसिक एंड दिस वन हाइड्रोजन आयन इज द बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है. तो बेसिसिटी इज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड. तो यहाँ पर एक है तो हम इसको बोलेंगे मोनोबेसिक एसिड. मोनोबेसिक एसिड्स आर दोज एसिड्स विच आर हैविंग one hydrogen ion per molecule of acid in a solution, जिसमें सिर्फ वो एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन देंगे सॉल्यूशन में एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड से, तो उसको हम मोनोबेसिक एसिड बोलते हैं, जैसे HCl और HNO3. ठीक है. अब एक और चीज हमारे पास आती है कि अगर मैं एक केस लूं एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड, तो इस केस में तो मेरे पास 4 हाइड्रोजन एटम है. तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी? 4 होगी? नहीं. आई एम टेलिंग अबाउट रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, मीन्स जो रिप्लेस हो सकते हैं. ये जो 3 हाइड्रोजन आयन है ये बाउंडेड फॉर्म में ये रिप्लेस नहीं हो सकते. जब ये टूटता है तो ये, सॉरी, ये वाला आएगा ये, और ये आएगा ये. इस एरो का क्या मतलब है ये भी मैं आपको बताऊंगी. इस एरो का मतलब क्या है कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता. HCl के अंदर ही कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है. तो हम एक साइड एरो लगा रहे हैं, यानी कि वो कंप्लीटली आयंस में चेंज हो गया. यहाँ पे मैं डबल हेडेड एरो लगा रही हूँ. डबल हेडेड का मतलब होता है इक्विलिब्रियम का साइन. इक्विलिब्रियम मतलब कि रिएक्शन थोड़ी सी आगे जा रही है लेकिन पूरी कंप्लीटली वो आयंस में चेंज नहीं हो रही, वो वापस पीछे आ रही है.
ठीक है, डिटेल में ये कंसेप्ट आप +1 में करोगे, लेकिन इस साइन का मतलब है कि पूरा का पूरा ये डिसोसिएट नहीं हुआ है। ओके, तो ये डिसोसिएट होके ये बनाएगा ये। तो हमारे पास कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है? ओनली 1, तो इट इज अ मोनोबेसिक एसिड। ओके, इसके अंदर कितने हाइड्रोजन है हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। तो it is only having one replaceable hydrogen ion, so its basicity is 1, it is monobasic acid. Okay, now next one is dibasic acid. Dibasic means a molecule of acid which gives 2 hydrogen ion per molecule of acid in a solution. जो 2 हाइड्रोजन आयन देगा सॉल्यूशन के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे डायबेसिक। यस, जैसे हम एग्जांपल करते हैं H2SO4 का। H2SO4 पहले टूट के बनाएगा हमारे पास HSO4 नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन अभी इसके पास एक और हाइड्रोजन पड़ा है, ये भी ये दे सकता है, एंड अल्टीमेटली ये बनाएगा SO4-2 एंड H पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली अगर हम टोटल रिएक्शन लिखे दोनों को मिलाकर, तो H2SO4 ने क्या दिया है? 2 हाइड्रोजन आयन दिए हैं और एक सल्फेट आयन दिया है। बेसिकली एक सल्फ्यूरिक एसिड की एक मॉलिक्यूल से मुझे 2 हाइड्रोजन आयन मिले हैं, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, तो इट इज डायबेसिक इन नेचर। ओके, सो यस, इट इज डायबेसिक इन नेचर। डायबेसिक मीन्स एनी एसिड विच गिव्स 3 हाइड्रोजन आयंस पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इन अ सॉल्यूशन, तो उसको हम बोलेंगे ट्राइबेसिक डाइक फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड्स आर मोनोबेसिक एसिड्स, सल्फ्यूरिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड्स आर डाइबेसिक एसिड्स, एंड फॉस्फोरिक एसिड इज ट्राइबेसिक एसिड। 4 नहीं होती वैलेंसी, आपने लास्ट ईयर भी कंसेप्ट किया है। 4 के अंदर हमारा बॉन्ड ही चेंज हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा, इसलिए 3 हमारी लास्ट होती है। ठीक है, सो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है एसिडिक एसिड्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी। Now next classification we are having on the basis of their ionization. Acid can be classified into 2 types on the basis of their ionization. First one is strong acids and second one is weak acids. Strong acids are those acids which completely dissociates in water, are known as strong acids. Weak acids means which do not completely dissociates in water. अभी मैंने आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल दिया था, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल है मेरे पास। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे के सारे कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं पानी में। जैसे ही मैंने इसके अंदर सॉल्यूशन डाला, ये फटाफट से आयन बना देगा, तो यानी कि कंप्लीटली टूट गया है, तो हम इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वीक एसिड्स जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं पानी के अंदर, उनको हम वीक एसिड्स बोलते हैं। अगर मैंने इसको पानी में डाला तो ये कंप्लीटली आयन ना बना के थोड़ा सा टूटता है, इसलिए हम इसको वीक एसिड्स बोलते हैं। So this is a classification of the acids on the basis of their ionization. Now our next classification is based on their concentration. Concentration means how much amount of acid या how much percentage of acid present in how much amount of water. तो उसको हम कंसेंट्रेशन बोलते हैं। ऑन दिस बेसिस द एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज कंसेंट्रेटेड एसिड्स और डाइल्यूट एसिड्स। कंसेंट्रेटेड मीन्स दोज एसिड्स इन विच द अमाउंट ऑफ एसिड इज वेरी लार्ज देन द अमाउंट ऑफ वाटर। तो यस, मोर एसिड इज प्रेजेंट इन लेस वाटर, तो उसको हम बोलते हैं कंसेंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड मीन्स the amount of acid is very small as compared to the amount of water. So less acid is present, more water is present. These terms we are going to use many times. तो ये आपको पता होनी चाहिए। जो मैंने अभी तक आपको सारी क्लासिफिकेशन बताई है, हम किसी ना किसी तरह बार बार इनको यूज करने वाले हैं, तो इनको पढ़ते रहना ताकि आपको ये दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए और बाद में आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो।
नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कंसंट्रेटेड, जिसमें एसिड ज्यादा है पानी कम है, तो क्या हम कंसंट्रेटेड एसिड्स को डाइल्यूट में चेंज कर सकते हैं? यस, वी कैन वेरी इजीली चेंज द कंसंट्रेटेड एसिड्स इनटू डाइल्यूट एसिड्स, बट फॉर दैट वी हैव टू फॉलो वन प्रोसीजर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत बार ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यस, क्या हम पानी को एसिड में डालेंगे उसके लिए या एसिड को पानी में डालेंगे? तो ऑलवेज एंड ऑलवेज ऐड एसिड इन वाटर, नॉट वाटर इन एसिड. ये आपको याद रखना है. ये किसी ना किसी फॉर्म में आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में क्वेश्चन जरूर मिलता है 2 मार्क्स में. ठीक है. सो ऑलवेज एंड ऑलवेज ऐड एसिड इन वाटर, नॉट वाटर इन एसिड. व्हाई इट इज सो? अगर हमने एसिड को पानी में डाला तो actually when we are adding water or acid, when we mix together, then it is a highly exothermic reaction. ये बहुत ही exothermic reaction है. exothermic means आप सबको पता ही होगा in which heat is evolved, जहाँ पे heat produce होती है. so yes, this amount of heat is very large, बहुत ही ज्यादा large amount में heat produce होती है. तो if we are adding a small amount of acid drop by drop in water container, बड़ा सारा मैंने बीकर लिया, बीकर को मैंने टिल्ट किया, हल्का सा टेढ़ा किया और ड्रॉप वाइज ड्रॉपर की हेल्प से 1 ड्रॉप करके एसिड को अलोंग द साइड्स ऑफ द कंटेनर मैंने ऐड करना स्टार्ट किया. तो जो भी हीट इवॉल्व होगी इट विल बी एब्जॉर्ब बाय द वाटर विच इज प्रेजेंट इन द कंटेनर. पानी क्या है, वो उसको सारी की सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से कोई हार्म नहीं होगा. इसलिए हम एसिड को पानी में डालते हैं. अब हम दूसरा कंसेप्ट भी एक बार स्टडी कर लेते हैं कि अगर मैंने वाटर को एसिड में डाल लिया तब ऐसा क्या हो जाएगा जो मैं नहीं कर सकती हूँ. ठीक है, तब ऐसा क्या हो जाएगा? एक्चुअली व्हेन वी आर एडिंग वाटर इन एसिड, अगेन इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस. सो बेसिकली दिस हीट विल कन्वर्ट this water into steam and it will come out from the beaker and can burn our skin. अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो वो हमारे स्किन को बर्न कर सकता है. as you know that the steam is having more heating capacity than the water, है ना. लास्ट ईयर हमने किया था बिकॉज ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, स्टीम ज्यादा गर्म होती है पानी से. ठीक है, तो वाटर क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होगी वो इस वाटर को स्टीम में चेंज कर देगी, जो हमें बर्न कर सकती है. सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है, दिस हीट इज वेरी लार्ज दैट इट कैन ब्रोकन डाउन द ग्लास कंटेनर. तो ये ग्लास कंटेनर को तोड़ भी सकती है एंड द एसिड विल स्प्लैश आउट, और जो हमारे स्किन को बर्न कर सकता है, हाथ को जला सकता है, कुछ भी कर सकता है. So because of these reasons we are always and always adding acid in water, not water in acid. ये points आपको हमेशा याद होने चाहिए, क्योंकि these kind of experiment you are going to do by yourself in your higher classes और in your graduation, post graduation, जो भी आप लोग करोगे तो वहां पर ये solution आप खुद बनाओगे, तो ये concept हमेशा चलेगा जब तक आप chemistry करोगे. Now our acid topic is completed. Next topic is bases. So what are base? Base are the substances which are bitter in taste or have soapy touch. तो यस, जो बिटर कड़वे होते हैं टेस्ट में, और अगर हम हाथ में लेके उसको थोड़ा पानी में डालें तो हमें सोप लाइक फीलिंग आएगी. तो ये सोपी टू टच. ये तो हुआ अगर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे जर्नल बात करते हैं. अदरवाइज हम बेस को क्या कह सकते हैं, बेस आर द सब्सटेंसेस व्हिच गिव हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर. हमने एसिड के केस में किया था, वो देते थे हाइड्रोजन आयन, लेकिन ये देते हैं हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर, तो इनको हम बेस बोलते हैं. ठीक है, तो यस, बेस कैन डिसॉल्व इन वाटर. बेस को हम पानी में डिसॉल्व कर सकते हैं, और जो बेसिस पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, पानी में डिसॉल्व होकर जो एक सॉल्यूशन बनता है उसको हम बोलते हैं अल्कलीज. ठीक है, अल्कलीज इज अ सॉल्यूशन ऑफ बेस इन वाटर. ठीक है, सारे के सारे बेस को हम अल्कली नहीं बोलते, बिकॉज ऑल द बेसिस कैन नॉट डिसॉल्व इन वाटर. सारे के सारे बेस पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो हो जाते हैं और डिसॉल्व होकर जो बनाते हैं उसको हम अल्कलीज बोलते हैं. अल्कलीज इज नथिंग, बस इट इज अ डिफरेंट नेम ऑफ द बेस. ठीक है, वी कैन कॉल बेस एज अ अल्कली. हम उसको बोल सकते हैं
लेकिन ये अल्कलीज होती हैं बेस इन वाटर। अभी जो हमारी 10th क्लास है, 10th क्लास में हम अल्कलीज के बारे में ही बात करेंगे, उन्हीं बेसिस के बारे में बात करेंगे जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन सारे के सारे डिसॉल्व नहीं होते। तो उसके बेसिस पे हमारे पास ये लाइन आती है जो हम एमसीक्यूज में यूज कर सकते हैं। मे बी एमसीक्यू कैन कम ऑन दिस लाइन। क्या होता है कि ऑल अल्कलीज आर बेसिस, सारे के सारे अल्कलीज बेसिस हैं। क्यों? क्योंकि ये तो पानी में डिसॉल्व बेस ही तो है। लेकिन सारे के सारे बेसिस आर नॉट अल्कलीज, नॉट ऑल द बेसिस आर अल्कलीज। क्यों? क्योंकि सारे बेस पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकते, अल्कली नहीं बना सकते। सो ऑल द अल्कलीज आर बेसिस बट नॉट ऑल द बेसिस आर अल्कलीज। तो ये आपको लाइन पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नाउ नेक्स्ट वी कैन क्लासिफाई बेस in 3 classification based on different parameters. Based on their acidity, bases are classified as monoacidic base, diacidic base and triacidic base. First of all, we should know about the meaning of acidity. Acidity क्या है? जैसे हमने पहले वाले केस में बेसिसिटी किया था, बेसिसिटी एसिड्स की होती है मैंने बताया था, और एसिडिटी हमेशा बेसिस की होती है। तो बेसिकली एसिडिटी इज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ बेस। एक मॉलिक्यूल ऑफ बेस में जितने रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन है उसको हम उसकी एसिडिटी बोलते हैं। तो मोनोबेसिक में क्या होगा कि एक बेस के मॉलिक्यूल में एक ही हाइड्रोक्साइड आयन होगा रिप्लेसेबल सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम मोनो एसिडिक बेस बोलते हैं। मोनो एसिडिक बेसिस आर दो सब्सटेंसेस which give one hydroxide ion per molecule of the base in a solution। ठीक है, जैसे NaOH, KOH, इनके पास एक एक रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन है तो इनको हम मोनोबेसिक बोलते हैं। डायबेसिक आर हैविंग टू रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉलिंग एट डायबेसिक। Tribasic are having 3 replaceable hydroxide ion, that's why we are calling it as a triacidic base. Okay, next one is based on ionization। तो ये कितना वो टूटता है, कितना वो ब्रेक डाउन होता है सॉल्यूशन में या वाटर में, उसकी बेसिस पे वी आर क्लासिफाइंग बेसिस एज स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग मीन्स दे विल कम्प्लीटली आयोनाइजेस इन द वाटर, वो पूरी तरह से टूट जाते हैं, जैसे हमने एसिड्स के केसेस में किया था, लाइक KOH, NaOH, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस। सॉरी, नेक्स्ट इज वीक बेस विच डू नॉट कम्प्लीटली आयोनाइजेस इन द वाटर, लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, रिएक्शंस आप लिख सकते हो, वो तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा था, लेकिन अगर आप लिखना चाहो, प्रैक्टिस करना चाहो तो यू कैन डू। Next is based on their concentration. Concentration means amount of base present in water. On this basis, bases are classified as concentrated base and diluted base. Concentrated means having more amount of base as compared to water, and diluted means having more amount of water as compared to base. तो इस तरह से हम बेसिस को क्लासिफाई करते हैं। दिस इज अ कंसेप्ट अबाउट बेस। लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने एसिड बेस के साथ में थर्ड सब्सटेंस भी किया था, दैट इज न्यूट्रल सब्सटेंस। तो यस, न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या है? न्यूट्रल सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच नीदर बिहेव एज एसिड और नॉर बेस, जो ना ही एसिड है ना ही बेस है, जो न्यूट्रल है। अभी आगे आगे हम इस चैप्टर में करेंगे न्यूट्रल एसिड बेसिस क्या है पीएच के बेसिस पे। तो न्यूट्रल सब्सटेंसेस आर नॉट एसिडिक नॉट बेसिक। ठीक है, ये कौन कौन से हो सकते हैं? लाइक शुगर, शुगर केन, ग्लूकोज एंड सॉल्ट। तो ये सारे के सारे हमारे पास न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं, and salt is a category of the neutral substance which we are going to discuss in detail in this chapter. So yes students, this is all about for today's video, जिसमें हमने acid base और neutral substances और salt का थोड़ा सा basic जाना है। In our upcoming videos we are going to discuss about detail of these three. This is all about for this video. Thank you.